हमारी परिभाषाओं, हमारी अभिव्यंजनाओं, हमारी चेतनाओं का लेखा जोखा है अग्रणी संकल्प। हमारी मान्यताओं, उपलब्धियों और सृजन का दर्पण है अग्रणी संकल्प। एक संकल्प कि हम अपना भौतिक, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण और पर्यावरण बचाए रखेंगे। अग्रणी संकल्प का यह अंक समर्पित है हमारे महाविद्यालय के इको क्लब के प्रयासरत कदमों को, जो संकल्पबद्ध है कि हर एक पेड़, हर पौधा और हर जीव सम्मानित रहे इस धरा पर। जन जागरण की बात करो, पर्यावरण की करो शुरुआत, नारा है यह इको क्लब का। They truly believe that we have not inherited this earth, we have borrowed it from our children. Moving ahead with the program, may I invite? Today we are proud to have amongst us Dr. Udit Raj, Member Parliament Lok Sabha, representing Northwest Delhi constituency and influential leader of Bharatiya Janata Party. Dr. Raj is also the National Chairman of the All India Confederation of SC/ST organization. A graduate from Allahabad University, Dr. Udit Raj is an alumni of Jawaharlal Nehru University. In 1988, he was selected for the prestigious Indian Revenue Service and served the Indian government as the Deputy Commissioner, Joint Commissioner and Additional Commissioner of Income Tax at New Delhi. In 2003, he declared his resignation from the Indian government services. We are indeed honored to have such an active personality amongst us. May I take this opportunity to invite Dr. Udit Raj, Member Parliament Lok Sabha, for sharing his vision and views with us. Thank you so much, Honorable Child and Welfare Minister Srimati Maneka Gandhi ji, Honorable Bajrang Lal ji, Honorable Nand Kishore ji, and Mr. Deshwal and Mr. M.K. Bhatt, who presented brilliant report. I am very happy to be with you. Of course, academics is still my passion. However, I hardly get the time to read and write. Of course, I try to write. But let me tell you, I'm not going to flatter him. What he has done for this constituency and for the Delhi, my brother Nand Kishore Garg ji and all his team, is that it is the best, one of the best and finest institution. And how could I gauge it? I could gauge it when people pressurize me for admission. That is one of the parameters to know that what the institutions bears, what it is. So there's sometimes too much pressure on me also. And then I pass pressure to him also. Then he says that so university has a lot of checks. I understand it. And secondly, I have adopted one village. What I am going to share is that it's a Honorable Prime Minister vision, government vision, that villages should be developed alike cities, so that the flight towards the bigger cities can be checked and there can be balanced habitat and settlement. I have adopted a village that is known Jayanti, not very far off from here. And I have got number of requests from foreign students from Westminster, and recently about 20 Westminster students had visited that village, and Japan students had visited village. Then I could see that though they are far from places, yet they are interested in village and rural life also. So I will, I don't know what the management is doing in this respect, that you people, you young students of mass communication, technology, management,
should take some venture and adventure also to go and study. Many fields are there: soil, then water, hygiene, solar energy, business, and economic activities are very less in villages, unless until it is a seasonal agricultural activities. So I see that the foreign students, they come even of management and engineering, they go and research. So that kind of exposure is also needed. And I am in agreement with Nankishore ji said that it should not be the only job seeker but job giver also. So that kind of orientation should also be needed. This is needed. Of course, ours is the British system, and we haven't made much of changes in our schooling and educational system. However, we have to move with pace of time. So this is also my suggestions. I think the faculty must be taking all these things into account. If not, then of course, some of them should come and see that how they can utilize their talents. See, utilizing the talents and knowledge in a place where possibilities are there, but they have not yet been tapped. And second, when I was coming here, then I said that what should I talk to the distinguished guests and dear students. Then I had tried to do something in and around this Maharaja Agrasen. Of course, my college is that we have initiated connection of 40-meter wide road between sector 20 to 23. This will minimize the distance. Then, of course, repair of roads of Maharaja Agrasen College is also being undertaken, और 2 महीने के अंदर हम इसको रिपेयर पूरा करा देंगे. I'm also attempting to have a sport complex in sector 23. तो उससे that will be, it's not very far off from here. Then athletic center also, and some of other requirements and needs, if management thinks and institutes, student think that each possible through me, that will be welcome. With these few remarks, I thank you all. हाथ ढलते गए सांचों में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद होती गई. धन्यवाद सर. अपार हर्ष हो रहा है कि आज हमारे बीच मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ नेता और उत्तर क्षेत्र संघ चालक डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता. मन और मानस से एक सच्चे भारतीय की तरह आप पक्षधर हैं समर्थ भारत के, भारतीयता के. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मवाद से लेकर महात्मा गांधी के स्वदेशी प्रारूप का आपने बड़ी गूढ़ता से अध्ययन किया है, लेकिन कुछ जी प्रतीत हो रहा है कि Dr. Udit Raj it would not be possible for Dr. Udit Raj to stay with us any longer. Therefore, I request Shri Manoj Singhal to present a memento to Dr. Udit Raj, and also I request Shri T.R. Garg ji to present a shawl to Shri Udit Raj. Thank you so much, sir, for your active dynamism. Thank you so much, sir, for gracing us with your company and your pearls of wisdom.
Thank you so much, sir, for your valuable time. Your presence inspired us. Thank you so much. Moving ahead with our program, हम जिक्र कर रहे थे डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी का, जो कि आज इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। मैं बात कर रही थी उनके काम की, उनके कर्म क्षेत्र की। मन और मानस से एक सच्चे भारतीय की तरह डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता पक्षधर हैं समर्थ भारत के, भारतीयता के। जिक्र चल रहा था दीनदयाल उपाध्याय जी का। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मवाद से लेकर महात्मा गांधी के स्वदेशी प्रारूप का आपने बड़ी गूढ़ता से अध्ययन किया है। भारतीय शब्दावली में इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू किस कदर घुला मिला है, इसका आपको बखूबी ज्ञान है। रूटलेस डेवलपमेंट और संस्कारहीन विकास के खिलाफ अगर आज एक बुलंद आवाज है तो वो है आपकी श्रीमान। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज आपके सानिध्य का अवसर हमें प्राप्त हुआ। हमारे युवा वर्ग को नई दिशा और भारतीयता के नई समीकरण समझाने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी भारतीय अर्थशास्त्र के प्रबुद्ध वक्ता डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता, वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज के इस कार्यक्रम की सम्माननीय मुख्य अतिथि और भारत सरकार में मंत्री श्रीमती मेनका गांधी जी, आदरणीय डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी, आदरणीय प्रेम सागर गोयल जी, उनके ट्रस्ट के सभी सम्माननीय ट्रस्टी और यहाँ इस सभागार में उपस्थित बहनों भाइयों, इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स, प्राध्यापक मित्रों और नौजवान मित्रों, मेरे नाम के आगे ऐसा लिखा है कि मैं चीफ स्पीकर हूँ, पर जो समय दिया है वो तो समय तो निकल गया। इसलिए मेरे मन में दुविधा थी बोलना कि नहीं बोलना। मैंने नंदकिशोर जी को पूछा बोलना है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं बोलना तो है। तो क्या बोलना, तो मुझे एक किस्सा याद आता है। जर्मनी के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं आइंस्टीन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी उन्होंने। जगह जगह उनको व्याख्यान के लिए लोग बुलाते थे। उस जमाने में ऐसा वीडियो नहीं होता था, तो उनकी शक्ल सब लोग नहीं जानते थे। एक छोटे कस्बे में व्याख्यान के लिए बुलाया। रास्ते में ड्राइवर को कहने लगे, एक ही व्याख्यान देते देते मेरे आज सर में दर्द हो गया। तो आइंस्टीन के ड्राइवर ने कहा, सर अगर आपके सर में दर्द हो गया तो आज आप रहने दीजिए, आपकी जगह पर मैं बोल दूंगा। तो उन्होंने कहा, अरे साइंस पर बोलना है, टेक्नोलॉजी पर बोलना है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बोलना है, तू क्या बोलेगा? तो उन्होंने कहा, आपका भाषण सुनते सुनते मैंने रट लिया है, आपको विश्वास ना हो तो उन्होंने कहा नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस कस्बे में आइंस्टीन के नाम से उसको खड़ा कर दिया। बहुत अच्छा बोला, तालियां बजी। तालियां बजने के बाद सभागार में से एक ने सवाल कर दिया। अब सवाल का जवाब बेचारे को कहाँ आता था, पर आखिर ड्राइवर तो आइंस्टीन का था। उसने कहा ये भी कोई सवाल है, इतना सरल सवाल पूछा है, पीछे मेरा वो ड्राइवर बैठा है वो जवाब दे देगा। तो मेरे परिचय में बताया गया कि मैं संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, और संघ के कार्यकर्ता तो एक ही बात बोलते हैं बार बार, राष्ट्र की बात बोलते हैं, संस्कार की बात बोलते हैं। अभी मैंने सारी रिपोर्ट दोनों डायरेक्टर से सुनी, तो जिन विद्यार्थियों ने एकेडमिक एक्सेलेंस प्राप्त किया है और उसके कारण से इस इंस्टीट्यूट्स को भी ए और A1 ऐसा रैंकिंग मिला है, तो इंस्टीट्यूट को भी और उन विद्यार्थियों को भी मैं शुभकामना देता हूं। पर यहाँ रुकना नहीं चाहता। अभी आपका ये रैंकिंग, आपकी ये पोजीशन शायद दिल्ली स्टेट में रही होगी, और मुझे बताया कुछ मामलों में नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे रही है। मेरी ये शुभकामना है, इच्छा है, प्रभु चरणों में प्रार्थना है, आपका स्थान समूचे भारत में नहीं विश्व में इस इंस्टीट्यूट का बनना चाहिए। भारत की प्रतिभा का प्रभाव और प्रभुत्व सारी दुनिया में हो रहा है। जानकार लोग तो ऐसा कहते हैं, अगर भारत की प्रतिभा
दुनिया के रंगमंच से वापस भारत चले आए तो दुनिया का कामकाज बंद हो जाएगा। आज जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसमें बहुत बड़ी भूमिका भारत के नौजवान विद्यार्थियों की और प्रतिभावान व्यक्तियों की है। पर 2-3 बातें आज के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है। भारत यानी क्या? आपके काम से भारत प्रकट हो रहा कि नहीं हो रहा? भारतीयत्व प्रकट हो रहा कि नहीं हो रहा है? अगर हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो किया पर हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारे जीवन में वो भारतीयता प्रकट नहीं हुई तो भारत जिन बातों के लिए जाना जाता है ऐसा लगेगा कि उसमें हम योगदान नहीं कर सके। कुछ वर्षों पहले हम सब ने सुना है वो घटना, 2 हवाई जहाज आसमान में टकराए, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर को ध्वस्त कर दिया। अमेरिका में बड़ा हड़कंप मच गया, उदास हो गया, निराश हो गया, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ऐसा करके अमेरिका के लोगों को रहा, अमेरिका भी रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसा विचार किया। तो ऐसी निराशा के वातावरण को देखकर प्रोफेसर सैमुअल हंटिंगटन को हुआ कि ये मेरे देश को क्या हो गया है। मेरे देश को लोग केवल 2 हवाई जहाज के टकराने से और एक बिल्डिंग के नष्ट हो जाने से ये कह रहे कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अमेरिका बचेगा कि नहीं बचेगा। तो उन्होंने प्रश्न फेंका, कहा कि अमेरिका के लोगों पहले ये तो देख लो अमेरिका होने का मतलब क्या है, हु आर वी, ऐसा प्रश्न किया उन्होंने। बहुत डिबेट चली अमेरिका में। उस सारी डिबेट को संभाल करके उन्होंने एक पुस्तक ही लिखी। पुस्तक का नाम ही हु आर वी है। मैं जहाँ जाता हूँ खासतौर से नौजवान लोगों को कहता हूँ अवश्य पढ़िए। जब ये प्रश्न उन्होंने रेज किया अमेरिका के लोगों के सामने हु आर वी, तो जो जवाब दिया, जवाब ये आया, वी आर इंग्लिश स्पीकिंग एंग्लो सेक्शन प्रोटेस्टेंट कल्चर। अमेरिका होने का मतलब प्रोटेस्टेंट कल्चर है। अमेरिका की धरती पर जब तक एक भी प्रोटेस्टेंट कल्चर को मानने वाला जीवित है, अमेरिका जीवित रहेगा। यही प्रश्न क्या ईमानदारी से अपने आप हमको अपने बारे में नहीं पूछना चाहिए, हम कौन हैं? भारत होने का मतलब क्या है? वो जो कह गए हैं कि यूनान मिस्र रोमा मिट गए, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो बात क्या है? वो बात का दुर्लक्ष्य हो रहा है आजकल दुर्भाग्य से। अपनी पढ़ाई में, लिखाई में, पाठ्यक्रम में, शिक्षा में, संस्कारों में, व्यवहारों में वो भारतीय तत्व गायब होता चला जा रहा है। जिस दिन भारत से भारतीय तत्व गायब हो जाएगा, भारत की आत्मा नष्ट हो जाएगी। विवेकानंद ने यही कहा, महर्षि अरविंद ने यही कहा, 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यही कह रहा है। तो पढ़ाई के साथ साथ, अध्ययन के साथ साथ ये भारतीय संस्कृति के और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के संबंध में अध्ययन करना और उसको जिंदगी में जीना, इसका प्रयत्न भी करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आजकल मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा बहुत वर्षों तक दिल्ली में। बहुत सारे विद्यार्थियों को पूछते थे तुम्हारा एम क्या है, तो साधारण तौर से एक शब्द चलता है कैरियर। कैरियर बनाना, समय खराब नहीं करना, पर कैरियर के साथ कैरेक्टर का कोई मूल्य होता है, इसको भूल गए हम। कैरियर के साथ अगर कैरेक्टर नहीं जुड़ा तो केवल पढ़ाई लिखाई के कारण से, और वो पढ़े लिखे लोग अनेक तरह की आपदाओं के कारण भी हो सकते हैं। वो तो माइंड इंटेलिजेंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। आज अपने देश में भी होने वाले अनेक तरह के उपद्रवों के सरगना मास्टरमाइंड कौन है? पढ़े लिखे लोग हैं। तो क्योंकि कैरियर में से कैरेक्टर निकल गया, इसलिए हमको इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हम सबको वो घटना पता है, विवेकानंद अमेरिका गए, सड़क पर जा रहे थे सवेरे सैर करने के लिए। अमेरिका के नौजवान युवक और युवतियां उनके पीछे हो लिए, भद्दे भद्दे कमेंट्स करने लगे उनकी पोशाक पर। और जब भद्दे भद्दे कमेंट्स करने लगे वो सुनते गए। विवेकानंद को कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी, पर एक स्टेज के बाद में वो अबाउट टर्न करके खड़े हो गए और कहा, लिसन, इन योर कंट्री ए टेलर कैन मेक ए मैन ग्रेट, बट इन माई कंट्री फ्रॉम वेयर आई हैव कम इट इज द कैरेक्टर एंड कैरेक्टर ओनली विच मेक्स मैन ग्रेट। ये संदेश था विवेकानंद का, ये संदेश है भारत का।
इससे भारत के विद्यालयों में, शिक्षालयों में, अकादमिक इंस्टीट्यूशंस में हम कैरियर की जरूर बात करें, एक्सेलेंस जरूर लेंगे, पर एक्सेलेंस के साथ साथ ये भारतीय संस्कृति और जीवन के चरित्र की भी बात करें। वही बल है हमारा, वही ताकत है हिंदुस्तान का। दुनिया भर में हम जाकर के क्यों लोगों को प्रभावित कर पा रहे हैं, हमारे अकल और विवेक के कारण से कर पा रहे हैं, वह साथ ही साथ हमारे व्यवहार के कारण से भी कर पा रहे हैं। मुझे विश्वास है ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इस बात को निश्चित रूप से विद्यार्थियों में इनकलकेट करने का प्रयत्न करेगा। ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, टेक्नोलॉजी की बात चली, स्किल डेवलपमेंट की बात भी चली। आजकल अपने देश में बहुत सारी बात चल रही है, स्किल डेवलपमेंट की भी चल रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की भी बात चल रही है। मैं आउट ऑफ द बॉक्स एक निवेदन करना चाहता हूं आप सबको। ये जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दुनिया में हुआ है, बहुत फैसिलिटी दी है, बहुत सुविधाएं दी है, वंडरफुल काम किया है इसने, पर उसी के साथ साथ कुछ संकट भी तो दे दिए। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो गया ना, ग्लोबल वार्मिंग हो गया ना, क्लाइमेटिक चेंज हो गया ना, इसके कारण से प्रदूषण, पॉल्यूशन फैल गया ना, इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का है। तो प्रश्न ये आ रहा है आजकल दुनिया के सामने एक चैलेंज है, जानकार लोगों के सामने, समझदार लोगों के सामने, पढ़ने और पढ़ाने वालों लोगों के सामने, रिसर्च करने वाले लोगों के सामने ये सवाल है, कौन सी टेक्नोलॉजी हो जो इन समस्याओं को जन्म न दे। ये सवाल है, यक्ष प्रश्न है, दुनिया के सामने खड़ा है। उसका जवाब दुनिया में से नहीं मिलेगा, भारत में से उसका जवाब मिलेगा। भारत में वो क्षमता है। क्यों क्षमता है उसका भी एक किस्सा सुनाकर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। वो भी विवेकानंद के जीवन से ही जुड़ा हुआ किस्सा है। विवेकानंद के ऐसे बड़े बड़े व्याख्यान अमेरिका की धरती पर होते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। विवेकानंद के भाषणों को सुनकर के कोई भी मोहित होता था। और ऐसे एक व्याख्यान विवेकानंद का हो रहा था, बैठे बैठे एक व्यक्ति ने सोचा ये भारत जैसे सुदूर देश से आया हुआ है, गुलाम देश से, ढीला ढाला चोगा पहनकर आया है, हमको उपदेश कर रहा है, और उसने मन ही मन सोचा कि हमको बेवकूफ़ बना रहा है। इसलिए वो खड़ा हो गया प्रश्न लेकर। अब विवेकानंद तो लोगों की मन की बात को ताड़ लेते थे, समझ लेते थे। इसने कहा कि इसके मन में यह प्रश्न आया कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, तो मन ही मन उत्तर दिया, बनाने की जरूरत क्या है, बनाया तो उनको जाता है जो ना हो। तो उसने प्रश्न किया कि साहब आप आत्मा की, परमात्मा की, दर्शन की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पर आप ये मानो टेक्नोलॉजी में तुम पिछड़े हुए हो। तो विवेकानंद ने कहा कि हम तो सत्य को मानने वाले लोग हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे, पर मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हारे देश में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनी है क्या 2 बर्तन में स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला दे। अब तो वो प्रश्नकर्ता चकरा गया। अमेरिका के तो रसोई में पूरा शस्त्रागार होता है तो भी स्वादिष्ट खाना नहीं बनता उनसे। तो उसने कहा तुम्हारे देश में है क्या। मेरे परिचय में परिचय कराने वाले एक बात भूल गए, मैं राजस्थान से आता हूँ, मूलतः राजस्थान का रहने वाला। तो विवेकानंद ने कहा हमारे देश में एक राजस्थान नाम का प्रांत है, वहाँ दाल बाटी की रसोई बनती है। कितने बर्तन चाहिए, दाल के लिए 1 बर्तन और बाटी के लिए, आटा गूंदने के लिए दूसरा बर्तन, उपलों में सेक कर खाते हैं। ऐसी बढ़िया टेक्नोलॉजी हमारे पास है। प्रश्नकर्ता चकरा गया। तो विवेकानंद ने कहा नहीं रुकिए, हमारे देश में लगातार रिसर्च चल रही है। अब जो लेटेस्ट रिसर्च की है हमने, उसमें 1 बर्तन में स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला देना। खिचड़ी के लिए कितना बर्तन लगता है। टेक्नोलॉजी किसका नाम है, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप का नाम टेक्नोलॉजी है। वर्तमान की टेक्नोलॉजी ज्यादा इनपुट से ज्यादा आउटपुट दे रही है। रिसोर्स क्रंच की प्रॉब्लम क्यों है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सवाल खड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम सारी दुनिया के रिसोर्सेज को अपनी सुख सुविधाओं के लिए समाप्त कर लेंगे। सारा कोयला खा गए, सारा लोहा खा गए, सारा तेल पी गए, सारे वृक्षों को काट डाला हमने, बचा क्या है। सवाल खड़ा हो रहा है इसी रास्ते से दुनिया जिसको विकास कह रही वो चलेगी तो रुकेगी कि नहीं रुकेगी, टिकेगी कि नहीं टिकेगी, बचेगी कि नहीं बचेगी। इसलिए सस्टेनेबिलिटी का सवाल खड़ा हो रहा है। इसलिए हमारे सामने ये प्रश्न है
हम इस टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में क्या कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट देने वाले एपरेटस का इन्वेंशन कर सकते हैं क्या? ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। भारत की अगर परंपरागत और पुरानी तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का अध्ययन करें आप लोग, अवश्य करना चाहिए। तो हमने कोई टेक्नोलॉजी में पिछड़े हुए नहीं थे। 2250 काउंट का सूत काटते थे भारत में। आज तो बेस्ट टेक्सटाइल मिल भी 550 काउंट से ज़्यादा का सूत नहीं काट पाती थी ना हमारे पास टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी की खासियत ये थी, कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट देते थे, कोई एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन नहीं होता था, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता था। तो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स के सामने ये चैलेंज है। मेरा विश्वास है महाराजा अग्रसेन जैसे इंस्टीट्यूट इस चैलेंज को अवश्य स्वीकार करेंगे और इस दुनिया के सामने एक नया रास्ता दिखाने का संकल्प प्रस्तुत करेंगे। एक अंतिम बात कहकर के विषय पूर्ण करता हूँ। मैंने प्रारंभ में कहा मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, तो संघ के कार्यकर्ताओं को क्या आता है? बोलना एक ही आता है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मातृभक्ति। इसी का राग अलापते हम संघ के लोग। जहाँ जाते हैं ये कहते हैं तमाम समस्याओं के समाधान का रास्ता ये मनुष्य निर्माण में से है। और मनुष्य कैसा चाहिए? मनुष्य भ्रष्ट नहीं चाहिए, मनुष्य बेईमान नहीं चाहिए, मनुष्य राष्ट्र के साथ द्रोह करने वाला नहीं चाहिए, चंद चांदी के टुकड़ों में अपना ईमान बेच देने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। देश के सीक्रेट दे देते हैं सुविधाओं के लिए। इसलिए हम अपने पढ़ते पढ़ते अपने देश के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं, देश के लिए काम करने का कितना विचार करते हैं। मेरे अपने प्रोफेसर थे, मैं जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बहुत वर्षों पहले की बात है, वो जापान गए थे। जापान सेकेंड वर्ल्ड वार से 45 में उभरा और हम 47 में आज़ाद हुए। जापान हर दृष्टि से परेशान था, वो आगे बढ़ गया। क्यों? एक ही कारण से, जापान के तमाम विद्यार्थियों को व्यक्ति व्यक्ति के मन में ये राष्ट्रभक्ति, ये देशभक्ति, ये मातृभक्ति का संस्कार डाला था। उन्होंने कहा कि एक दिन मैं सैर करने के लिए निकला, जापान की प्रगति का राज समझने के लिए मैं यूनिवर्सिटी गया, बड़े बड़े एकेडमिशियन से मिला, उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए, मुझे नेताओं से मिला, उन्होंने बड़े बड़े अपनी नीतियां बता दी, समझ में नहीं आया। तो मैं जब सड़क से गुजर रहा था, एक 12-13 साल का बच्चा कंधे पर बस्ता लटकाए हुए स्कूल जा रहा था। मैंने बच्चे को रोका, क्या नाम है? अब जो भी याहू साहू जो भी नाम होता होगा वहाँ, वो बता दिया उसने। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो 12-13 साल का बच्चा जिस स्टैंडर्ड में पढ़ता होगा बता दिया। उनका मैंने तीसरा सवाल पूछा, क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा, मैंने उस छोटे बच्चे से जैसे ही ये प्रश्न पूछा, क्यों पढ़ते हो, तनकर मेरे सामने खड़ा हो गया कि ये भी भला कोई पूछने का प्रश्न है। हर जापानी बालक इसलिए पढ़ता है, पढ़ लिख करके वो योग्यता और प्रतिभा हासिल कर सके और उस योग्यता और प्रतिभा को अपने देश जापान के चरणों में अर्पित कर सके। ये प्रेरणा थी जापान की। भारत में वो प्रेरणा आनी चाहिए, वो राष्ट्रभक्ति, वो देशभक्ति का जज्बा आना चाहिए ना। मेरी प्रतिभा, मेरी योग्यता, मेरी साधन संपन्नता, मेरा पद, मेरा स्थान इस मातृ देवता के चरणों में अर्पित होना चाहिए। ये भाव इस इंस्टीट्यूशन से आएगा। मुझे बुलाया और बुला करके ये सम्मान दिया और आपने समय बीत जाने के बाद में भी मुझे सुनने के लिए बर्दाश्त किया। इसलिए हृदय के अंतःस्थल से सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नए युग की हुंकार, तो इस देश की पुकार। भारतीय संस्कारों, भारतीय मूल्यों, भारतीय मान्यताओं, भारतीय सस्टेनेबिलिटी को इतनी जीवंतता, इतनी सजीवता से प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत श्रीमान। Compassion has remained a catchword from time immemorial when we talk of Indian value system. On the other hand, political ethos portrays pragmatic and harsh realities, often leaving no room for comparison. However, certain personalities master the art of balancing these two odds. Yes, ladies and gentlemen, I'm talking about none other than the Honorable Minister for Women and Child Development, Mrs. Menaka Gandhi. A Lok Sabha member for 7 terms, ministered in 4 governments, and an author of number of books in the areas of etymology, law and animal welfare,
these are not the only phrases that define this woman of substance and conviction. As a person, she's a woman who has battled more for others than for herself. She started the organization People for Animals in 1992, and it is the largest organization for animal welfare in India. She is chairperson of Ragmat, an organization which has won awards for rescuing the maximum number of bonded child laborers. She currently chairs the jury of International Energy Globe Foundation, which annually meets in Austria to award the best environmental innovations of the year. For her outstanding work and contribution, she has been recipient of innumerable awards. Prani Mitra Award, Marching Animal Welfare Trust Prize, Venu Menon Animal Allies Foundation Lifetime Achievement Award, International Women's Association Women of the Year Award 2001, Dinanath Mangeshkar Adi Shakti Puraskar, ASG Jaikar Award are a few of her illustrious awards and achievements. Needless to say, if today we are more sympathetic towards flora and fauna around us, it's because of you, ma'am. You have inspired men and women alike with your courage, spirit, and clear stand. I am privileged to present before the audience Honorable Minister for Women and Child Welfare, Mrs. Maneka Gandhi, whose voice reverberates across the globe on matters of welfare and heart of conduct. Dr. Garg, Mr. Singhal, Chancellor and Vice Chairman of the Maharaja Agrasen University, the Chairman, Shri Goyal, ladies and gentlemen on the dais, Dr. Udit Raj, who has now left, and Dr. Bajrang Lal Gupta ji. I'm afraid the doctor has completely forbidden me to speak at all, so you are very lucky that you won't get another speech. In any case, what Dr. Bajrang Gupta ji has said is so brilliant that there is no need for me to speak anymore. My throat is really very bad, so I've completely been not allowed to speak. I'm just going to say one thing, which may or may not be relevant at the moment, but has to be done. The Ministry for Women and Child has been watching young people becoming ruder and more intolerant towards each other. In this mahal, education is not making us into kinder, gentler people. और जैसे जैसे दुनिया में लोग बढ़ते जाएंगे, अगर बदतमीजी भी बढ़ जाएगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कोई भी डिग्री का। इसलिए हम लोगों ने मंत्रालय में बहुत सोचा कि हम क्या कर सकते हैं जिससे जो महिलाएं हैं उनके प्रति हम लोग एक सामान्यता, एक उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए लड़कों को सिखाया। और जैसे लड़के सीख जाएंगे वैसे परिवार सीख जाएंगे, सब लोग सीख जाएंगे। And we don't have much time, so let us do it now. तो एक कानून हमने बनाया है जो मालूम नहीं कि यूनिवर्सिटी को मालूम है कि नहीं, लेकिन इस साल से जब भी आप नेशनल अवार्ड देंगे, आप एनुअल अवार्ड देंगे, चाहे स्पोर्ट्स के चाहे एकेडमिक्स के, आपको हर क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, whichever, whether it's a technical university or a normal university or any school, an award has to be given called a gender champion. जिस लड़के ने सबसे ज़्यादा किया है इज़्ज़त बढ़ाने की लड़की की, या जिस लड़की ने सबसे ज़्यादा किया हो इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, that person is to be given a gender champion award. ये हम लोग 5वीं कक्षा से शुरू कर रहे हैं और 2-3 साल के अंदर अंदर मुझे उम्मीद है कि ये पूरे देश में एक ऐसे फैल जाएगी कि to attain this award in itself will be part of your CV, and when you apply for a job, I hope that the employers will look at an award like this. I congratulate, I've been reading what all Maharaj Agrasen Institute has been doing, and I'm deeply impressed by its
academic excellence. I wish it all success, and I wish each one of you not just success, but I wish you love, happiness, and as most of all, I wish you the gift of compassion, the gift of empathy. जो शब्द empathy है वो एक अजीब शब्द है, उसको sympathy से कोई मतलब नहीं है। empathy का मतलब है कि जब आपके सामने कोई आए और वो मुश्किल में हो, तो आप हमेशा उसकी जगह में अपने आप को सोचें। धर्म जिसको हम बोलते हैं, धर्म का मतलब क्या है अंग्रेजी में, उसको ट्रांसलेट करना कैसे मैं करूं? अगर कसाई मार रहा है और उनके पिताजी सब कसाई हैं, तो क्या उसका मतलब है कि उसका धर्म है काटना? अगर हम लोग कोई बुरा काम कर रहे हैं, चोरों की परिवार से आते हैं, तो क्या हमारा धर्म बन गया? धर्म और प्रोफेशन का कोई अंतर नहीं है, कोई मेल ही नहीं। धर्म को अंग्रेजी में केवल एक शब्द है, एक सेंटेंस है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। अगर आपको थप्पड़ खाना अच्छा नहीं लगता है तो किसी और को थप्पड़ मार दें। अगर आपके साथ आपको बदतमीजी अच्छी नहीं लगती है तो दूसरों के साथ बदतमीजी ना करें। अगर हर एक इंसान दूसरे को अपना गुरु समझ करके चले तो एम्पैथी बढ़ती ही जाती है। अगर आपको कोई भी बुरा काम अच्छा नहीं लगता है तो वो बुरा काम आप मत करें, इसको एम्पैथी कहते हैं। और अगर हम एम्पैथी करें, अगर हम अपना धर्म करें, अगर हम इफ़ वी डू अनटू अदर्स एज वी वुड हैव देम डू अनटू अस, you will find the world comes and rolls at your feet. You will find that the universe itself comes and asks your permission to exist. You cannot be unlucky. You cannot go wrong because everybody and everything works for you. I wish you a future in which each one of you do your dharma. Dhanyavad. Thank you, ma'am, for enlightening us with your golden words of wisdom. We all are thankful and grateful to you for sparing your valuable time from your busy schedule. जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें लगन का उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जीत की गूंज गुंजायमान हो, उससे पहले अनुरोध करना चाहूँगी श्रीमती मेनका गांधी जी, please give us just a moment so that we can acknowledge your presence with a memento. हम सौभाग्यशाली हैं कि आपको साक्षात सुनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। समर्पित, कर्मठ, मृदुभाषिणी, त्यागमयी, विदुषी, शब्द कम हैं लेकिन इनके गुण अनेक हैं। धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला और अपनी खूबसूरत व्यक्तित्व से हमारे इंस्टीट्यूट को नवाजा। श्रीमती मेनका जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां।